सो पोरस भाई, ये मल्लखम्ब की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? वॉज इट इन योर स्कूल? हाँ, वो मेरे स्कूल में था, बट द थिंग इज आई वॉज अ वेरी एनर्जेटिक किड Okay. एंड प्रॉब्लम चाइल्ड, यू कैन से, टू माई मॉम, फॉर माई मॉम, Okay. बिकॉज ऑफ हाइपर एक्टिव. सो स्कूल में मलखाम था, सो एवरी इवनिंग वो आते जाते दिखता था मॉम को. सो शी सेंट मी, अब जा तू ग्राउंड पे, जो करना उधर जो होगा वो कर, Okay. डोंट बी एट होम, डोंट ट्रबल मी, काइंड ऑफ थिंग. But why did you choose Mallakhamb then? I mean, there were several sports. It was not Malkham actually. So the ground had other basic activities as well, and Okay. there were two sects. Like एक छोटे बच्चों का ग्रुप था और एक कॉम्पिटिटिव मलखाम का ग्रुप था. Okay. सो मलखाम सबके लिए होता था हफ्ते में एक बार, Okay. बट उसमें से जो ज़्यादा अच्छे करते थे या लाइक दे हैड द कैपेबिलिटीज टू मास्टर इट क्वाइट वेल, दे वर टेकन इनटू द कॉम्पिटिटिव ग्रुप, which Okay. happened for me not intentionally, but being the hyperactive and energetic, wo after 6 months they took me into the competitive group. Like it wasn't a choice, but it happened and I liked it. Okay. And there were competitions of this Mallakhamb. Yeah, there are regularly Malkham Federation भी है, Okay. उसके yearly competitions होते हैं, and then government के जिला परिषद, फिर स्कूल, स्टेट स्कूल, नेशनल्स वगैरह ऐसे. But some of the trend has been decreased, right? Because अभी तो बच्चे दिखते ही नहीं है मल्लखम्ब पे. And it is a ancient Indian tradition or sport, you can say. But still there are no kids in that. I mean, they are not getting that kind of focus or motivation to be in that. To be honest, है like if you consider me as a parent, I want my kid to do this. Correct. It is Obviously. quite fancy. It is looks fancy. It is a beneficial for your health. दिखता अच्छा है, ancient है, so parent के लिए लगाव है. But sometimes what happens is me, if I am a kid now. So sometimes for me it is a bit painful to perform, क्योंकि वो स्किन के अगेंस्ट फ्रिक्शन होता है, या फिर थोड़ा सा कोचिंग में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहे तो बच्चों को पसंद नहीं आता है. दैट देयर आर मेनी वेरियस फैक्टर्स विच माइट अफेक्टेड. सो ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट टू बी ऑनेस्ट, गिवन द करंट ट्रेंड, मेरे टाइम पे जो था लाइक 10 years ago and now there are 2x kids doing it right now. What, seriously? Yeah. Okay, that's really great. And how many schools have it in Pune at least? What do you think? Pune currently there might be 10 to 15 at least. Okay, and at your time when you started? There were only 3. Okay. There were only 3. My school, there is one called as Maharashtra Mandal, and there is one in Pimpri called as Gnan Prabodhini. Okay, and your school was Only 3. modern? Modern. My school is modern. Got it. And then you started your journey into fitness basically, and as a personal trainer, strength coach. So when did you decide that you want to get into this industry? So there's a story actually to it. So Okay. me being into the Malkham, I was regularly into the exercise part. Okay. So I stopped after my 10th. मतलब competitive Malkham बंद किया मैंने. So evening time में ऐसा I used to get restless. So I started gymming. So I Okay. liked it and I continued for a very long time. Okay. And there were few of my friends who were into the gym as well, and one of them was a trainer Okay. who was suggesting me to start working as enter into the fitness field. But my parents, my relatives and everyone was like, नहीं तेरी personality वगैरह अच्छी है, try to go into police, Okay. civil service exam दे, army में जा, ऐसा कुछ तो. So I was diverted into it. Okay. But few years down the line, I did the mainstream thing. I went on it. मेरा थोड़ा सा health, which was never an issue for me. Okay. Like I used to fall sick, not major, but ऐसा बुखार आता था, low in energy, सर्दी. random. Okay. एक दो दिन it used to care, and I used to get irritated, frustrated, ऐसे इधर उधर. Then I decided नहीं, मेरे से बैठे वाला जॉब होने वाला नहीं, 8 घंटे, 8 hours studying. Correct. Right now has got me clear, like help me clear one exam. Okay. उसके आगे जाने के लिए I might नहीं, I will have to increase my study hours and everything. And after that, if I get a job in government service, and that too on a desk job, I cannot stay on a desk for 12 hours and surrounded by papers. That's not going to happen. So that's how after I guess third year of after completing my BCom, then I was like कि नहीं, अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ. I told my Okay. mom. My mom was like,
I'm जो fine with करना anything. Do whatever you like. Okay, that's great. And so, who do you consider an icon into this fitness industry? Who you look up to, or who inspired you to, be what you are, or motivate you every day? To begin with, like my idols changed actually. So नहीं वो तो हाँ. natural है. But So- tell us about everyone. I mean the Yeah. phases. So the first one, the friend that I told you, मेरा school friend था वो, he was a trainer. So he was taller than me. Like I'm 5'6", he was 6'1", Okay. huge 100 kg guy. So I was like कि अरे यार इसके जैसा बनना है मुझे. So which was physically not possible, but Correct. I acquired it through the strength perspective. Like Correct. मेरा गोल चेंज हो गया अभी. साइज में तो नहीं बढ़ना है, but I like to like be strong as he is, Correct. being in the Have that same strength. body frame. So वो eventually over a period of 3-4 years हुआ धीरे धीरे, पर हुआ. Correct. Then like priorities change as you age, so it became more of like towards gaining knowledge, gaining money. So there's one more trainer in our field which I came across when I used to just work out in the gym. Okay. His name is Aditya Barve. Okay. So he was a top-notch trainer, knowledgeable, very good in what he does. Right now he is way more successful than what he was at that time. Okay. So that also inspired me कि like नहीं बाबा है, this was a starting point of my fitness journey as well. Correct. People are getting like, successful. हाँ कि आई वाज लाइक कि हाँ नहीं इसमें भी होप है, इट्स Correct. नॉट लाइक कि कुछ नहीं है. सो दैट वाज द सेकंड पर्सन दैट आई वाज इंस्पायर्ड बाय, एंड वो मेरा आइडल था. लाइक कि आई वांट टू बी लाइक हिम, Correct. नॉलेजेबल आल्सो, फिजिकली फिट आल्सो, एंड एबल टू टीच आल्सो. सो कोचिंग वाज नॉट एन इशू बिकॉज मैं मलकाम छोड़ने के बाद थोड़े गैप के बाद आई वाज बैक इनटू कोचिंग अगेन, नॉट एज अ कॉम्पिटिटिव बट आई यूज्ड टू टीच द यंगर किड्स. सो टीचिंग पार्ट तो मुझे थोड़ा बहुत आता था, वो फील्ड के अकॉर्डिंग रिफाइनिंग इज अ डिफरेंट. देन दैट गाय इज स्टिल देयर एट सम पार्ट, आई स्टिल कंसिडर मी एज एन आइडल, बट नाउ देर आर फ्यू डिफरेंट. लाइक एक के फिलोसफीज मुझे पसंद आते हैं. इट्स लाइक ही इज़ मोर इन टू कंसिस्टेंसी ऑफ अबाउट बीइंग इन दिस फील्ड हेल्थ वाइज. लाइक ऐसे रैंडम एक्सट्रीमिज्म डाइट नहीं फॉलो करना है, रैंडम एक्सट्रीमिज्म वर्कआउट नहीं करना है. Correct. सो सस्टेनेबिलिटी वाइज. सो देर आर ऐसे छोटे छोटे लोग हैं, मतलब PhD लेवल होल्डर्स है वो. Okay. सो उनको मैं फॉलो करता हूँ. सो आई कंसिडर देम एज माई आइडल नाउ. सो ऐसा एक के लिए न्यूट्रिशन के लिए मैं उनको फॉलो करता हूँ, वर्कआउट रिलेटेड के लिए, इसलिए ऐसे Got it. So it has been changing चेंजिंग throughout the time. टाइम. सो इट्स लाइक वॉट एवर सूट्स यू बेस्ट, keep it with you, move on with the refine yourself, move ahead, refine yourself, move ahead. It's not like you completely discard the person. Correct. There's always something valuable that you can get out of it, but still. So you have always to move kept on refining. on. Yeah. And obviously, I mean, even if you think about people, 8th में कुछ और बनना होता है, 10th में कुछ और बनना होता है, फिर ग्रेजुएशन के बाद कुछ और ही पूरा बन और ही जाते बनना है, हैं, exactly. और फिर रियलिटी चेक मिलने के बाद कुछ और ही बन जाते हैं. I get it. And Porus bhai, what was your family's reaction? I mean, what did they think when you decided that okay, this is my field, I'm getting into it? तो उनका first reaction, your family, your close relatives or your close friends, well-wishers, उनका क्या reaction था when you told them कि no, this is a legitimate business and I'm getting into it? Yeah. First of all, I'm a very introverted guy. Okay. So पहले तो जब मैंने decide किया कि I want to be in this, I told my mom, my sister, that's it. And I was like कि tell my mom has 2 sisters, like उनमें से एक she is very close to and she lives nearby. So मैंने उसको बोला था कि only she has to know it, बाकी दुनिया को नहीं बताना. जब होगा तब पता चल जाएगा, Correct. अभी तो नहीं बताना. Starting में नहीं बता. हाँ. So I did my course. So धीरे धीरे फिर our typical Indian relatives nosy, poking noses, like अब क्या कर रहा है, ग्रेजुएशन हो गया, आगे क्या करना है, काम कब करेगा, ये कब करेगा. So वो धीरे धीरे पता चल गया. बट बाय द टाइम I had already started working in Multifit Okay. and started earning quite well. Like not You were a trainer at Multifit. yeah. So my goal was to gain first floor experience, then start or move Correct. on into the freelancing. It's very important. Yeah. And floor in experience is very important. Like bulk मिलता है, कैसे handle करना है, क्या करना है. Correct. And You you get get the to gist see of- multiple people, train them, try out your Techniques and refine my techniques. Just पहले कैसे सिर्फ theory था. Correct. बाद में the और खुद practical का part, कुछ बनाना भी जरूरी है. practical implication
appliance of what the knowledge you have gained और Correct. मेरा exercise knowledge जो है मलखाम वाला भी ये नया वाला भी mix and match. Then मेरे friends were like कि finally बाबा हाँ अभी आए बहुत तो सही साल track से पे। जब बोल रहे थे अभी तेरी बत्ती जली तो आया फाइनली वाह सो दे वर क्वाइट सपोर्टिव माय फ्रेंड्स आर अ बिग पार्ट ऑफ माय लाइफ Very आई good. कंसिडर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय लाइफ सो देम बीइंग सपोर्टिव वाज अ वेरी बिग बूस्ट फॉर मी बहुत बड़ा support होता है friends का। So initial clients भी जो माउथ पब्लिसिटी के थ्रू आए और whatever happened, हाँ। that happened because of friends? नहीं सो आई वॉज इन मल्टीफिट सो इट्स अ वेरी रिनाउंड बिग ब्रांड इन Correct, पुणे correct. सो वहाँ से डेस्क पे से मिलते थे एंड वॉट द थिंग वॉज कि आई यूज टू वर्क आउट इन मल्टीफिट प्रायर टू ज्वाइनिंग एज अ ट्रेनर Okay. सो वहाँ पे मैं 2 साल ऑलरेडी वर्कआउट कर चुका था और मुझे So you लोग were a पता थे- customer at Multifit Yeah, also, then a trainer. then a trainer. Okay. So my workout time was quite odd, but people still knew me because being like I told you, my goal was to gain strength in a leaner frame. Correct. Like छोटा सा बंदा बहुत और ये वजन inner उठाता strength है। की बात हाँ, हो रही है। हाँ Not और- muscular. नहीं मस्कुलर स्ट्रेंथ लाइक Okay. एक छोटा सा बंदा आता है जो मलखाम खेलता था बहुत हेवी वजन उठाते हैं सो आई वाज क्वाइट पॉपुलर बीइंग नॉट गोइंग इनटू द पीक आवर्स ऑफ द जिम स्टिल Okay. थोड़ा सा इधर उधर बोलते रहते सो पीपल इनडायरेक्टली न्यू मी सो दैट वाज अ गुड थिंग फॉर मी बिकॉज अपने आप पब्लिसिटी हो चुकी थी Correct. तुम पब्लिसिटी जो होती है वो हो चुका था एंड लेटर ऑन लाइक एनी फील्ड यू गिव 6 months टाइम में थोड़ा थोड़ा क्लाइंटेल बढ़ते गया Correct. एंड इफ़ यू आर जेन्युइनली प्रोवाइडिंग द गुड क्वालिटी सर्विस देन तो फॉर श्योर होता है तो अभी कितना टाइम हो गया आपको ये करते हुए? नाउ इट्स बिन 3 years Full-fledged individual. Yeah. Independent. Yeah. That's really great, Great. Horus bhai, and it's very nice. And what do you think about the current eating habits the youngsters or the today's generation, including parents, have, or they take it forward or give it to their kids कि ये खाना है या ये आजकल उनके eating habits के बारे में you being a fitness enthusiast and a nutritionist and you have a knowledge, so what do you think about that? ये क्या हो रहा है? सो पहली चीज़ है कि लोगों में पेशेंस नहीं है कंसिस्टेंसी लाइक मैं आपको बोलूँ अगर मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हूँ सो मैं आपको बोलूँगा बी पेशेंट बी कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग होता है ये अगर न्यूट्रिशनिस्ट बोलता है तो बोलते नहीं मेरे तो 6 महीने बाद शादी मुझे जल्दी रिजल्ट चाहिए Oh, सही है। गेट माई पॉइंट Yeah, getting it. सबसे बेस में इधर ही फॉल्ट है सेकेंड इज फूड लाइक अरे मेरे दादाजी के टाइम से मैं ये खाते आ रहा हूँ इससे मेरी हेल्थ नहीं खराब होगी दादाजी के टाइम पे खाना बहुत अलग था अभी बहुत अलग है Very true. लाइक न्यूट्रिशन क्वालिटी वाइज अभी आधे से ज़्यादा केमिकल डले हुए रहते हैं हाँ वो दैन दोज आर जस्ट टू गेट द आउटपुट लाइक मुझे सेब उगाना है आई ऐड सम फर्टिलाइजर्स टू इट आई वांट दिस बिग आई गेट इट न्यूट्रिएंट वैल्यू नोबडी केयर्स yeah, correct. The second thing is food group. So being a trainer, everybody is hampering like protein खाओ. So protein का importance is your muscles, your internal organs are also a muscle. सिर्फ बाहर जो दिखते हैं हाथ पैर मूव करते बाइसेप मारने ये मसल्स नहीं है एवरी इंटरनल ऑर्गन एवरी बोन दैट इज मेड आउट ऑफ प्रोटीन सो सम अमाउंट ऑफ योर फूड हैज़ टू बी प्रोटीन नो मैटर वॉट लाइक जब अपन कहते हैं कि हमारे दादाजी के टाइम में ऐसा था दाल वॉज न्यूट्रिएंट रिच Yeah. गेहूँ न्यूट्रिएंट रिच राइस न्यूट्रिएंट रिच नाउ द न्यूट्रिएंट अपने को एक स्कूल में एक लेसन था आम बराबर गेहूं हाँ। यू रिमेम्बर बिकॉज उसमें उन्होंने कहा था कि आम की गुठली के जितना एक गेहूं का दाना होता था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड विच इज क्वाइट बिलीवेबल आई मीन आई कैन बिलीव इट दैट्स व्हाई दे हैड दैट मस्कुलर बॉडी एंड Exactly. इट वाज वेरी न्यूट्रिएंट रिच अभी तो न्यूट्रिएंट रिच अभी सब प्रोसेस फूड आता है हस्क नहीं है हस्क मतलब फाइबर्स जो बोलते हैं फाइबर्स नहीं है ये सिर्फ से वेजिटेबल्स है लीफी वेजिटेबल्स वगैरह पर दैट टू अगेन इतनी क्वालिटी अच्छी नहीं है सो बेसिकली एक डोमिनेंट फूड ग्रुप पे फोकस फिर आता है प्रोसेस फूड विच इज़ वेरी एडिक्टिव लाइक Burgers, fries. हाँ एंड दिस बिग चेन्स हैव अ रिसर्च टीम they target your brain receptors addictive receptors like which will help you crave like अभी मैंने ये कॉफ़ी कंसिडर्ड एज अ लेस का प्रोडक्ट दे विल मेक श्योर कि तुम एक में ऐसे सेटिस्फाइड नहीं होगे इतना उनके पास उतना कैपिटल है उनकी उतनी रिसर्च टीम है लाइक इट इज़ अ multi-billion-dollar कंपनी डू यू थिंक दे वोंट हैव अ रिसर्च टीम
No, no, food definitely. craving, textures. Like they can standardize. Like let's take an example of Coke. Coke इंडिया में भी सेम मिलता है, यूएस में भी सेम मिलता है. टेस्ट सेम क्यों है? दे हैव स्टैंडर्डाइज्ड इट एवरीवेयर. ये अगर ये कर सकते हैं तो टेस्ट रिसेप्टर्स टारगेट करना कितना डिफिकल्ट है उनके लिए. द अदर थिंग इज शुगर्स के like reading the research now being into this field, I have been come across many researchers where they have been saying कि sugar is more addictive than all the drugs or the alcohol abuse and stuff like that. So Wow, seriously? they have the similar withdrawal symptoms as alcohol addiction or drug, any kind of drug addiction. Oh my god. And you can experience it in the easiest way possible कि एक हफ्ता मीठा खाना या शुगर खाना, like added sugar खाना बंद कर दो, you will start craving it even more. Seriously? As easy as that. Try it out. Okay, this is a very new piece of thing to me, because I did not know that it has proved that itna withdrawal symptoms आएगा. Yes, it has been proven. There are researches published online with the credible journals, like what do you call it, the PhD holders के क्या रहते हैं वो proofings and research. theories जो होते हैं वो उसके साथ है सब literature. Oh my god. And what about the youngsters eating, I mean, craving for burgers, fries and pizzas more nowadays? And you know why am I asking you this? Because our Indian kids, for them it is a foreign food, or it is outside food, processed food, whatever you can call it. But for people staying in Spain, Italy, Europe, or even US, UK, they have the staple food as bread. So they are having bread in their day in day out every day. So इज इट एक्चुअली बैड फॉर अस, और उनको चलता है या ऐसे, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये. उसके बारे में आप कुछ बता पाओगे कि उधर तो स्टेपल फूड है बट वो तो अभी रोटी चपाती बाजरा जवारी नहीं खा सकते, तो फिर भी दे आर गेटिंग फिट एंड दे हैव देयर ओन फिटनेस. एंड इफ दैट सेम फूड इज कंज्यूम्ड बाय आवर इंडियन किड्स और एवरीबडी, देन वी गेट फैट एंड आई गेट द आइडिया. सो यहाँ पे एक पॉइंट है कि locally made and दो अलग है. कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्वालिटी ऑफ फूड. सो पहले जो यूरोपियन कंट्रीज बोलते थे, अपन बोलते हैं कि फ्रेंच आ रहे, वो पैटिसरीज बहुत भारी है, ब्रेड फ्रेंच वाला ब्रेड बहुत भारी रहता है, वो क्रॉसांट वगैरह एक्सेट्रा, फैंसी, ऑल द फैंसी स्टफ. दे वर ऑल हैंडमेड फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड, उसमें बटर, घी नहीं, पर उनके लिए मार्जरीन, बटर वगैरह ऐसी चीज़ें रहती थे विच आर वेरी हाई इन न्यूट्रिएंट क्वालिटी कॉल्ड एज फैट. वो जो आता है दूध से, जो दूध काऊ झबेरे देगी वो डायरेक्ट यहाँ से आता है. अभी क्या होता है, लाइक बिग मिल्क फार्म्स, गाय से दूध आता है, प्लांट में जाता है, पास्चराइज होने के बाद प्लेन मिल्क इज सेंट टू द कस्टमर्स. उसके बाद जो रिमेनिंग प्रोडक्ट है उसे घी बटर वगैरह बनाते, प्रोसेस लो फैट. सो द अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इन आर न्यूट्रिएंट इज़ फैट. फैट के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है. लोग बोलते हैं फैट खाने से आर्टरी क्लॉग होती है, ऐसा नहीं हुआ. दैट थियरी वॉज नेवर प्रूवन. ओके, उसके भी रिसर्चेस है विथ प्रूवन थियरीज पब्लिश्ड. और अभी जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, सो बीच में आता था लाइक व्हेन आई वाज इन 10th, अराउंड 10-12, सो देयर वाज अ थिंग, एडवर्टाइज मैसिव एग्रेसिव कैंपेनिंग ऑफ ऑयल्स, हार्ट हेल्दी ऑयल्स, लो कोलेस्ट्रॉल ऑयल. लो कोलेस्ट्रॉल ऑयल होता था. सो कोलेस्ट्रॉल खाने से हार्ट अटैक होता है, ब्लॉक होता है. That theory was never proven. Okay. Just to give you an idea. लोगों को घुमाने वाला चीज़. So that was a hypothesis जिस पे उन्होंने aggressively capitalize किया मार्केट करके. वो theory prove नहीं हुई. उसने जो था साइंटिस्ट या वो जो टीम थी, उन्होंने वो पब्लिश किया कि नहीं, इसका रिलेशन नहीं है. मार्केटिंग कंपनीज ने क्या किया, धीरे धीरे एडवर्टाइज बंद कर दी, एंड हमें पता भी नहीं चला. एंड द थिंग दैट कोलेस्ट्रॉल विल अफेक्ट योर हार्ट हेल्थ अपने ब्रेन में इनग्रेन हो गई. हाँ, वो दिमाग में रह गया. अभी किसी को पटाना मुश्किल है. 10 years डाउन द लाइन पीपल स्टिल से अरे कोलेस्ट्रॉल क्यों खाना है, बटर क्यों खाना है, हार्ट क्लॉग हो जाएगा. करेक्ट. नाउ कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, यूरोप और ये कि स्टेपल फूड से थोड़ा सा फर्क पड़ता है. पर देन अगेन इफ आई बाय ब्रेड फ्रॉम अ लोकल, व्हाट डू यू कॉल इट, बेकरी, एंड आई बाय ब्रेड फ्रॉम अ $multi-billion कंपनी, उनको क्या रहता है, कम रॉ मटेरियल में ज़्यादा आउटपुट करना है, ज़्यादा प्रोसेस करते हैं, ज़्यादा रिफाइन कर देते हैं, मेन न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो. सो बेसिक फंडा वही रहता है कि न्यूट्रिएंट रिच, न्यूट्रिएंट डेंस, जितना खाना होगा उतना बेटर. अभी वहाँ पे कैसा होता है, अपने यहाँ पे कैसा है, बर्गर दिया, सो बर्गर है,
ब्रेड है, बीच में एक तो नॉनवेज आधे लोग खाते नहीं है, विच इज़ ऑब्वियस इंडिविजुअल चॉइस है, कोई क्वेश्चन नहीं। करेक्ट करेक्ट। उसमें आलू के पैटे रहते हैं, वापस लेट्यूस वगैरह जो कुछ भी सैलड है। सो कमिंग टू टेक्निकलिटी, ब्रेड इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, आलू इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, सैलड से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स है नहीं एग्जिस्टेंस में नहीं। और रिफाइन करके जो होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, जो जितना आप उसको रिफाइन करके उतना फास्ट एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में। ओके। सो कार्बोहाइड्रेट्स का जैसे स्कूल में पढ़े कि एक ही पॉइंट है एनर्जी प्रोवाइड करना। ओके। सो बाकी के फंक्शन के लिए क्या बचा? कुछ नहीं। एंड रिफाइनिंग जैसे मैंने बोला कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे गिव लॉट ऑफ एफर्ट इनटू इट टू मेक यू एडिक्ट टू इट, लाइक नॉट एडिक्ट, दे कॉल इट क्रेविंग, लाइक यू शुड क्रेव मोर। ये सो वैसे उधर भी होता है, अभी उधर भी हो रहा है। लाइक यूएस इज कॉल्ड एज द ओबेसिटी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि बहुत ओबेस लोग हैं वहाँ पे, उतने हैं वहाँ पे लोग। क्यों? क्योंकि उनका स्टेपल फूड अब ये बन गया है प्रोसेस फूड, दे कैन नॉट लिव विदाउट दिस थिंग। तो अर्लियर उनका स्टेपल फूड भी न्यूट्रिएंट रिच था। न्यूट्रिएंट रिच था, लाइक इट वाज, इफ यू कंसीडर दिस एज अ प्लेट, इसमें से इतना नॉनवेज फूड रहता था, या मीट, बीफ, गोट्स का स्टेक, चिकन, अंडे, जो कुछ भी है, उसके बाजू में सैलड, और उसके बाजू में जो कुछ भी वगैरह, जो पोर्क वगैरह जो बनता था, अपन बोलते हैं वो पोर्क बेली वगैरह, दैट हैज़ फैट्स एज वेल एज प्रोटीन्स इन इट। सो द थिंग इज फैट एंड प्रोटीन combined together will give you satiety. That is the whole point of it. Just to give you an example, if you are a non-veg eating person, चिकन तंदूरी जो होता है उस पर बटर ये हुआ और चीज़ रहा, you tend to eat it more. और एक हाफ या 3/4 तंदूरी खाने के बाद it has never been, I have never seen a person who say कि नहीं मुझे और 2-3 रोटी ला के दो। कैन यू रिलेट टू इट? लाइक पूरी तंदूरी खाने के बाद ऐसा रहता है कभी कि पेट में जगह है? नहीं है। दैट डजंट हैपन व्हेन यू ईट 3 नान खा लो दाल के साथ, अरे भाई डेजर्ट भी ला, राइस भी ला। यू गेट द आइडिया? यस आई एम गेटिंग। बैलेंसिंग द ग्रुप्स, फूड ग्रुप जो बोलते हैं वो अभी कैसा डोमिनेंट स्केल सिर्फ एक साइड पे टिप हुआ है, दूसरी साइड भूल गए। और इंडिया का तो मिल्क क्वालिटी भी खराब होते गए है ना। आई मीन मेनी कंट्रीज हैव already called the milk which is already being sold in India. I mean, I got to know this from a friend who is working with very closely with Gir guys and their milks. So basically Indian गाय का जो दूध है वो दूध आजकल अपने पास आता ही नहीं है। All these Jersey cows are clinically made cows, मतलब ये लोग थे नहीं पहले, साइंटिस्ट ने बनाया है इनको, and that's why they give more milk, and that milk is not good, and that cow also suffers a lot of diseases like you know sneezing and बुखार आना, पेट दर्द करना, और ये सब उसी मिल्क के थ्रू हम भी कंज्यूम करते तो हमको भी हो जाता है। Because I recently like 2 years ago I switched to proper गिर गाय milk which is a close, एक गोठा है हमारे घर के पास, तो मैंने उधर से सब्सक्राइब करके उनको देने को बोल दिया है। तो दैट इज़ लाइक अ लिटिल बिट कॉस्टलियर, बट दैट मिल्क हैज़ नेवर लेड आवर फैमिली टू गो फ्रीक्वेंट कफ्स, फ्रीक्वेंट कोल्ड्स, ये होता ही नहीं है। मतलब ये बेसिक जो चीज़ें होती थी वो भी कम हो गई है, एंड प्लस द फैट परसेंटेज अगेन इन दैट इज वेरी लेस, एंड इट इज न्यूट्रिएंट रिच बेसिकली, उसमें मिलावट कम है। Otherwise, many people say that don't get into cow milk only if it is shady. Direct भैंस का पी लो, that is more safer because वो original तो है. Original तो मिलेगा. And many countries have already treated this toned milk as poison. I mean, in Africa, in USA, in UK, they don't drink this kind of milk. But this business is going on in India. Like we have a huge population. हर एक का पेट भरना. हाँ, correct. It was the goal. Now that is not the case. Hopefully होगी, पर not to that extent. So let's hope कि वो change हो गए in future. Exactly. Like we'll focus more on the quality now. Correct. Poras bhai, who has been the greatest support in your life, personal life? That is obviously going to be mom. Okay. मतलब she like criticizes almost every move like a normal parent. Correct. But that in is the very end, normal. It is her who supports in almost everything. Like कर बाबा, तुझे कॉन्फिडेंस है ना, तुझे आएगा, तू कर पाएगा, then do it. You have my support. बाकी बाद में देख लेंगे. नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो सही है. हाँ, सही है. But she has been concretely standing with you. I mean. Yeah. Through everything, like I said, कि mainstream करियर छोड़ के इधर आने के बाद, like I told her कि I don't want people to
लाइक स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग यू, क्योंकि वो मुझे नहीं बोलने वाले, वो तेरा दिमाग खाने वाले हैं. सो फॉर द फर्स्ट एटलीस्ट 6 or 7 months, लाइक लेट मी स्टार्ट गेट अ जॉब, स्टार्ट अर्निंग अ few bucks, Correct. then you can start telling people. Exactly. 6 महीने तक it was only her sister that knew कि what is exactly happening in my life. So I considered that as a very big thing. Like, so Very nice. I'm very happy. And so, Poras bhai, what do you think about nutrition? I mean, importance of nutrition today? Because बहुत से बंदे क्या करते हैं अभी कि they focus on fitness more और nutrition piece थोड़ा छूट जाता है. So, how important is nutrition to be fit, to be upright in today's world? honestly, from my personal experience, I'm telling you, nutrition has to be 100% on point. Okay. क्योंकि like before entering this field as a profession, मैं वर्कआउट जब करता था, so like every typical Indian household, मुझे रेजिस्टेंस था कि यार इतने अंडे क्यों खाने हैं, इतना चिकन क्यों खाना है. So धीरे धीरे like that happened very slowly for me as well. Like year 1, absolutely nothing. Okay. I'm telling about पूरा 1 साल. Oh my God. Me being into fitness, diet was absolutely useless. 2-3 चपाती खाओ, जो कुछ भी घर पे बना है वो खाओ, निकल जाओ. सलमान खान डाइट. हाँ, खाओ कुछ और भी खाओ, diet. हाँ, खाओ और बाहर निकल जाओ. So Okay. then for me it was like कि अरे यार, I'm very performance oriented. So being into a competitive sport, मेरा ऐसा लाइक था कि परफॉर्मेंस नहीं बढ़ रहा है यार, वजन नहीं जा रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है. सो आई स्टार्टेड नोटिसिंग कि मुझे ट्रेनर्स बोल रहे थे कि ये खाना चालू कर बाबा, अभी तो खा. तो धीरे धीरे वो हुआ. देन जैसे जैसे मेरा डाइट इम्प्रूव होते गया, वैसे वैसे आई नोटिस्ड जो 1 साल में प्रोग्रेस जो स्टैगनेट हो गई थी, अगले 3 महीने में बूस्ट हो गई. Okay. Then, like I told you, my goal was to lift as heavy as my 100 kg friend. Yeah. That was achieved. If I hadn't changed my diet, I don't know if that was even possible. Then my diet became not even 100%. I'll say 60 to 70%. Okay. Then that guy sort of went off the track. That was unfortunate, but that's not the case. So that's not the point. So 60% होने के बाद 1 साल के अंदर मैंने नोटिस किया कि आई हैड रीच 90% ऑफ द वेट दैट ही वॉज लिफ्टिंग एट दैट टाइम व्हेन वी बोथ यूज्ड टू वर्क आउट टुगेदर. Wow, यार. एंड दैट टू विथ यू कैन से 60% ऑफ हिज बॉडी वेट. लाइक इफ यू Okay. कंसिडर हिम 100, आई वाज 60. below 70. 60. Below 60. Below 60 actually. Like I am right now 60, 61. Okay. So this has been the highest. उसके नीचे था मैं इतने साल तक. Wow. So and like experience from my clients is like बहुत ज़्यादा लाइफ में फ़र्क पड़ता है. Like there like half of them are obviously going to be in a desk job. They are like कि अरे मेरा अलर्टनेस बढ़ गया, फोकस बढ़ गया, आई फील मोर एनर्जेटिक. सो जितना तुम्हारा खाना इंप्रूव होगा उतना तुम्हारा परफॉर्मेंस भी बूस्ट होते जाता है. एंड हाफ ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस इज like let's consider like me being in an 9 to 5 job. So there I have to do a task which you are telling me to do. Correct. For sure, like प्रोजेक्ट है या फिर मेरे सिर पे एक मैनेजर है, मुझे ये करना है. सो आधे टाइम क्या होता है कि मुझे ऐसा काम बोला होता है ज़िंदगी में करना है जो मुझे एक्चुअली नहीं करना है, पर मुझे पैसा कमाना है और सर्वाइव होना है, इसलिए मैं कर रहा हूँ. Correct. So only thing that is in your control is your weekends and throughout the week your food. So Very generally when I tend to suggest something for my client, वो which I think this is मेरा thinking है या फिर ये मेरा personal opinion है कि it starts to conflict with अरे मेरे लाइफ में मेरा कुछ कंट्रोल है ही नहीं, सब लोग आजूबाजू से ही बोल रहे हैं. अभी ये बोल रहा है ये तू खा, वो बोल रहा है मेरे को ये काम कर, वो मैनेजर बोल रहा है नहीं तू टाइम पे नहीं आ रहा है. मेरे लाइफ में मेरा कोई कंट्रोल मेरा बचा control ही नहीं. नहीं. अभी खाना भी दूसरे को पूछ के खाना पड़ रहा है. सो अभी ये बोल रहा है ये खा. सो ऑब्वियसली देयर आर वेज अराउंड इट, लाइक यू सजेस्ट थिंग्स, थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट करना, ऐसे ही करना पड़ता है. बट अनलाइक मैनेजर थिंकिंग फॉर गुड हाँ. ऑफ देयर ओन, खुद के लिए, उनके लिए. बट थोड़ा सा रिलेक्टेंस तो होता ही है एवरीथिंग. Definitely. स्टार्ट स्लो, ग्रेजुअल इम्प्लीमेंटेशन करो. लाइक इफ आई एम अ ट्रेनर, आई एम रिकमेंडिंग यू समथिंग, आउट ऑफ इट try a few things. If you think you can stick it for a time, like for a month or 2, continue with it. नहीं बाबा दूसरा बोल. करेक्ट.
फाइंड अ वे आउट ऑफ इट. इट्स नॉट लाइक इट डजंट हैव टू बी हार्ड एंड फास्ट कि बाबा हाँ तू रोज़ सवेरे उठ के 6 अंडे खा, दोपहर में 2 चपाती खा, शाम में 1 चपाती खा, सो जा. फाइंड अ वे अराउंड इट जो तुम्हें कंफर्टेबल है, जो फिजिबल है. एट द एंड इट्स लाइक आई सेड, कंपाउंडिंग हैपेंस इन लॉन्ग रन. करेक्ट. जितना तुम कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे उतना बेटर होगा. और खुद का वे खुद ढूंढना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए. एंड जितना तुम्हारा एनर्जी लेवल वगैरह हाई है या जितना तुम कॉन्फिडेंट फील करते हो उतना तुम्हारा परफॉर्मेंस बढ़ता है. परफॉर्मेंस बढ़ने के बाद यू नो व्हाट हैपेंस, लाइक प्रोग्रेस. बट न्यूट्रिशन प्लेज दैट की रोल. इतना इम्पोर्टेंट है न्यूट्रिशन, जो बाकी लोग साइडलाइन कर देते हैं. So basically your 1 year without nutrition went entirely to waste. I mean because like, कुछ achieve नहीं कर पाए. Not waste, I cannot call it waste, but the kind of results, हाँ मतलब 3 महीने में जो रिजल्ट आ गए थे, हाँ एटलीस्ट उसकी वजह से मेरा एक्सरसाइज की टेक्निक इम्प्रूव हो गई. लेट्स जस्ट कॉल इट लाइक दैट कि एक्सरसाइज फॉर्म टेक्निक्स मतलब वाइड वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज पता चल गया. अभी स्टैग्नेंसी आ गई इसलिए बढ़ तो नहीं पाया पर वो रिफाइन हो गए. देन लेटर ऑन व्हेन आई स्टार्टेड अप्लाइंग अदर थिंग्स वो फटाफट ग्रो हो गया. गॉट इट. एंड आई वांटेड टू नो दैट now that I mean you call yourself a strength coach. Yeah. So what is this? Because this is a new word again for many people. उनको समझता नहीं है कि बंदा strength coach बोल रहा है तो क्या है. Because there is something called as performance coaching in investment banking also, which is again a totally different thing. But what is this strength coach? Strength coaching is like it's like it started like you can take an example of me. Like strength was my focus. So strength तुम्हारी ज़िंदगी में सब जगह पे काम आती है. Correct. To like give you an example is like बूढ़े लोग जो बोलते हैं ताकत नहीं रही अब काम नहीं होता. That is वो ताकत क्या है जो अभी हमारे पास है. So जितनी ज़्यादा तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है उतनी ईज ऑफ मूवमेंट है तुम्हारी लाइफ में. अगर तुम्हारे पास अभी स्ट्रेंथ है कि तू एक स्टेयर चढ़ सकता है, यू विल हैव नो ट्रबल इन गेटिंग. वही अगर आपने आपकी ग्रैंड मॉम को बोला कि नहीं बाबा डिफ़िकल्टी, दैट वोंट बी द केस इफ ग्रैंड मॉम वाज इनटू सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. आई एम नॉट सेइंग एक्सरसाइजेस, सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी विच वुड हैव बीन लाइक मेड हर परफॉर्मेंस वे बेटर. करेक्ट. सो वैसे ही है कि अभी मेरा काम है लोगों का परफॉर्मेंस बढ़ाना. सो परफॉर्मेंस कैसे बढ़ेगा? सो लाइक टारगेट है कि मुझे आप 100 किलोमीटर साइकिलिंग करनी है. सिर्फ साइकिलिंग करने से तो होने नहीं वाला हो, होता है पर ऑप्टिमल फॉर्म नहीं. अभी मुझे 1 घंटे में 100 करना है, एग्जाम्पल है. सो अभी लग रहा है मुझे 2 घंटे. सो ये कैसे इम्प्रूव करें? स्ट्रेंथ बढ़ाना है मुझे, थोड़ा थोड़ा मसल एंडोरेंस इधर उधर. सो जितना तुम स्ट्रांग बनोगे उतना, दिस इज़ माई फिलोसफी, जितना तुम स्ट्रांग बनोगे उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना यू कैन डू एनी काइंड ऑफ स्टफ दैट यू वांट टू डू. करेक्ट. सो माई थिंग इज़ हाँ बाबा तू मेरे पास आए, आई विल मेक यू स्ट्रांग, आई विल मेक यू लिफ्ट हैवी, आई विल मेक यू स्ट्रांग without making you injury prone or stuff like that. So मेरा काम है तुम्हें स्ट्रांग बनाना. वो कैसे करना है? सेफली, विच विल ऑटोमेटिकली एनहांस योर लाइफ. तुम्हारा गोल कुछ भी रहने दो, लाइक 6 महीने में स्ट्रेंथ, 6 महीने में कुछ तो भी गोल है. बाय द एंड ऑफ 3 मंथ्स तुम्हें लग रहा है कि यार नहीं दिस इज वे टू शॉर्ट, आई कैन अचीव इट राइट नाउ, या फिर नहीं यार ये यूजलेस है मुझे अभी चेंज करना है. सो स्ट्रेंथ इज यूनिवर्सल. यू कैन ईजिली चेंज डायरेक्शंस, यू कैन इवन टेक अ राउंड अबाउट. लाइक अभी मेरा साइकिलिंग करने का एम था पर अभी मेरे में इतनी ताकत आ गई है कि मैं यार पावर लिफ्टिंग में जाता हूँ. आई एम फॉन्ड ऑफ इट, आई स्टार्टेड लाइकिंग हेवी लिफ्टिंग, आई विल गो इनटू सम अदर डायरेक्शन. सो स्ट्रेंथ के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है. करेक्ट. एंडोरेंस की भी है बट आई एम नॉट एन एंडोरेंस गाय. ओके. आई विल प्रीफर मोर ऑफ स्ट्रेंथनिंग अ पर्सन टू रीच हिज लिमिट्स, reach his potential, true potential of physical capabilities that he can do. And do you include Malakam in that as well, or you teach Malakam separately? Malakam I used to teach separately, but now I don't. Have you mixed some? Yeah. So my technique has become unique because of it. Like I have implemented few things that were way too beneficial over there for me. Correct. Which I am reaping the benefits of still at this age after stopping the competitive practice after almost 12 years. 12 साल के ऊपर हो गए. I'm still reaping the benefits that I did at that time. So उसके थोड़े थोड़े से टेक्निक्स मैंने बहुत सारे इम्प्लीमेंट किए यहाँ पे.
and that has helped me as well as my clients to get strong. For wow. sure. और ये For uniqueness is very much important Yeah. if you are getting into basically a business Yeah. because अपनी एक USP होनी USP बहुत होनी ज़रूरी चाहिए. है. Got that. Porus bhai, people keep talking about financial literacy, this literacy, that literacy, but I am going to ask you about nutrition literacy or fitness literacy or being fit literacy. That literacy is not being transformed or passed on to the generations because in our ancient civilization, India, we had a great culture of fitness as well, nutrition as well. But सारे literacies आगे पास हो गए, कंप्यूटर लिटरेसी हो गई, लैंग्वेज लिटरेसी हो गई, बट ये अपना फिटनेस लिटरेसी और न्यूट्रिशन लिटरेसी पास ऑन नहीं हो रही है. तो उसके बारे में व्हाट डू यू थिंक? बिकॉज आई थिंक पर्सनली, आई मीन अक्षय कुमार रियली passes it on and talks about it, and there are many people more who talk about it also, but still वो जो impact है या फिर जो necessity है, you know, वो नहीं pass on हो रही है. उसके बारे में what do you think? ये अगेन कमिंग टू द स्ट्रीमलाइंड एजुकेशन सिस्टम. अभी टू गिव यू एन एग्जांपल, मेरी स्कूल के लेते. सो अर्लियर इन अ वीक माय स्कूल वाज 5 days a week. Okay. 5 दिन में से हफ्ते में 4 दिन गेम्स का पीरियड रहता था, विच वाज 40 minutes. गुड इनफ. स्कूल की स्ट्रेंथ, एक क्लास की स्ट्रेंथ सिर्फ 50, आउट ऑफ विच 20 वर गर्ल्स, 30 वर बॉयज. Yes. ईजीली 40 मिनट आराम से खेलते थे, सब बॉन्ड हो जाते थे एकदम. खेलना एज इन पूरा पसीना पसीना गीला इतना खेलना था. नाउ व्हेन आई वाज इन 10th दैट ड्रॉप डाउन टू 3. Oh. द टाइम ऑल्सो रिड्यूस्ड फ्रॉम 40 to 30. प्रायोरिटीज लेस. धीरे धीरे अभी तो मैंने रिसेंटली सुना कि अभी वो 3 के भी 2 के आसपास ही आ गए हफ्ते में. Very sad. सी द डाउनवर्ड ट्रेंड. Yes. लेटर इसके बाद पेरेंट्स का भी थोड़ा सा रोल होता है कि अरे बाबा इतना कंपटीशन बढ़ गया है, ज़िंदगी में सर्वाइव होना है, आजू बाजू के लोग देखते हैं ये वो, भाई पढ़ाई कर, खेल थोड़ा सा रहने दे. कोई पेरेंट्स होते हैं दे आर लाइक कि जो होना है वो होते रहेगा, तो खेल भी थोड़ा सा. Very nice. एंड Yes. दे हैव अ गुड अप्रोच, बट स्टिल ऐसा रहता है कि हाँ बाबा 12वीं तक खेल, उसके बाद सिर्फ पढ़ाई करनी तुझे. Correct. ऐसे नहीं, रिलेटेबल है, बहुत हाँ, रिलेटेबल. मेरे ऐसे साथ भी होते हुआ हैं. है. हाँ, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि बाबा तू खेलते रहे. सो देन अगेन ऐसे ये डाउनवर्ड ट्रेंड हो गया, क्योंकि हाफ ऑफ आवर चाइल्डहुड, नॉट हाफ, 70% ऑफ आवर चाइल्डहुड इन स्कूल. अगर उधर ही खेलने नहीं मिला तो आगे क्या आगे क्या खेलेंगे? न्यू स्कूल्स दैट आर कमिंग अप, फैंसी स्कूल, ये वो ग्लोबल इंटरनेशनल ये वो, दे हैव अ टाइनी ग्राउंड. उसमें से 2-3 क्लास एक साथ छोड़ देते. क्या खेलेंगे? गणपति की भीड़ रहती है वहाँ पे. क्या खेलेंगे? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. लाइक इफ यू डोंट एंजॉय द स्टफ ऑन द ग्राउंड, तुम कैसे कंटिन्यू करोगे? वहाँ पे जाके खड़े रहोगे, बात करोगे, हाय लड़के ताड़ो इधर उधर जाओ. तो वो खेलने में तो ध्यान रहता ही नहीं. दूसरा है कि इवनिंग फ्री टाइम जो रहता था वो अभी एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस में से गए. यस. लाइक आई कैन अंडरस्टैंड अ फ्यू सब्जेक्ट्स विच यू फाइंड डिफिकल्ट और यू आर वीक इन. नहीं, पर अरे भाई, पोरस पूरा में दिन फर्स्ट है. स्टैंडर्ड के बच्चों को ट्यूशन लग रही है. एग्जैक्टली माय पॉइंट. आई मीन 9th 10th व्हेन यू हैव योर बोर्ड्स और मे बी 12th, तब ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज आई वाज टेकिंग कोचिंग. सो फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे भी आ रहे हैं ट्यूशंस को. Exactly. Even I was into coaching classes. Like I was not a very bright child. Like because मेरा आधा फोकस इधर ही रहता था, मैं पढ़ाई कम करता था. मेरे मॉम ने मुझे ट्यूशन लगा दिया था. पर I had a strict rule of like एक ऐसा टाइम था, शाम में 6 बजे ग्राउंड है. 5:30 बजे के बाद कोई भी क्लास दुनिया में रहा तो भी मैं नहीं जाने वाला हूँ. फेल हुआ तो भी चलेगा, आई डोंट केयर. करेक्ट. 6 बजे ग्राउंड पे पहुँचना है. कमिटमेंट. 6 से 8 उधर ही है. 8 के बाद तो मेरे में जान है नहीं, उधर तो हो नहीं. आके सो जाऊंगा. सो जाओ. खत्म. So, जो कुछ भी है वो मॉर्निंग बिफोर स्कूल, और जो कुछ भी बीच में आधा पौन घंटा था, आधा पौन घंटे में तो होने नहीं वाला, पर बोलने में क्या थे. करेक्ट. ऐसा था. सो अगेन देन पेरेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें. इफ योर पेरेंट्स डोंट वांट यू टू, दे विल फाइंड अ वे फॉर यू टू नॉट डू दैट. करेक्ट. दे विल कन्विंस यू सम और द अदर वे, क्योंकि बच्चे दिमाग चलता नहीं है. कोई एक आधा रहता है ऐसे कि नहीं करना है, बट दैट इज़ अगेन अ ट्रबल चाइल्ड. वो बहुत रेयर रहते हैं. करेक्ट. बाकी बाबा आज्ञाकारी बेटे कर लो, इधर उधर के एग्जाम्पल प्रेशर हो जाता है. करेक्ट. स्कूल प्रेशर, परफॉर्मेंस प्रेशर,
देन अपने जो इंडियन कल्चर के बोल रहे हैं अभी, तालीम वगैरह रहती थी, लोग दिखते Yes, थे, yes. नज़र में आते थे। पहलवान अब है ही नहीं। अभी जो कुछ भी आता है वो सूट बूट में आता है, सामने जो सराउंडिंग ही नहीं है ना ऐसा। नाउ इफ़ यू टेक लाइक 10 लोगों का ग्रुप है, आउट ऑफ विच 5 or 6 ऑफ देम आर इन फुल्ली वेल ड्रेस्ड ऑफिस गोअर्स, one of them is like me who is in shorts all day every day and 2 of them are like semi casual. किसका इन्फ्लुएंस होगा? वही जो फर्स्ट वाला था, ऑब्वियसली वो सोच ही वैसी हो गई। लाइक जो दिखता है सामने वी टेंड टू गो टुवर्ड, हाँ बाबा ये अच्छा दिख रहा है, इधर ही जाते हैं। तो ये तो नहीं है। सही है, ये बहुत सही है और ये होना चाहिए बिकॉज दिस लिटरेसी नीड्स टू गो। एंड आई नो दैट आई अंडरस्टैंड कि पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो चाहते नहीं कि तुम फिट बनो या फिर इसका नॉलेज गेन करो तो तुम, बट देन अगेन आई फील दैट कि व्हेन यू गेट योर एज, व्हेन यू कैन टेक योर ओन डिसीजंस ना, ठीक है बचपन में जो होना था हो गया, फिर भी एटलीस्ट एट दैट पॉइंट यू शुड स्टार्ट थिंकिंग। बिकॉज माई यंगर ब्रदर ना, ही वॉज इनटू स्पोर्ट्स नॉट वेरी कीनली। वो 10th में बोली 10th आता यू हैव टू स्टॉप, कम बैक टू एकेडमिक्स, फोकस करो। एक तो पढ़ाई तो किया नहीं है अभी तक, तो अभी फोकस करो। और उसके बाद उसका स्पोर्ट्स काइंड ऑफ छूट गया। बट हिज रिसर्च स्टार्टेड आफ्टर ही बिकेम इंडिपेंडेंट आफ्टर 18। तो उसका रिसर्च चालू हो गया, तो वो बहुत वीगन डाइट्स, डाइट का इंपॉर्टेंस, न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है, प्रोटीन्स होता क्या है, साइंस कभी पसंद नहीं आया था उसको। बट ये सारी चीज़ें उसने रिसर्च करना चालू किया। तो आई थिंक कि ठीक है, मतलब बच्चे नहीं कर रहे हैं दैट्स फाइन। आई मीन यू उधर तो अभी जो होना था हो गया। अभी इट इज नॉट नेवर लेट ना, कि कभी ना कभी तो स्टार्ट कर दो, कुछ ना कुछ स्टार्ट कर दो। इट इज नेवर टू लेट। ऐसा नहीं है कि देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग, देयर इज अ सर्टेन पॉपुलेशन हु लीन्स टुवर्ड इट और चेंज द डायरेक्शन। मेरे को लगता है कोविड के बाद इवन साइकिलिंग की वजह से एटलीस्ट लोग इसमें ज्यादा आ गए हैं। They want to know the health benefits. नहीं तो मेरे को लगा साइकिल इंडस्ट्री तो डूब गई थी, कौन चलेगा साइकिल। बट पोस्ट कोविड अभी तो बहुत ज्यादा साइकिलिंग क्राउड बढ़ गया है। During the lockdown भी लोग, हाँ सब साइकिलिंग को निकले, सुबह को एक्सरसाइज को जा रहे तो जाओ। स्टेशनरी साइकिल सब चालू हो गया था। एंड coming back to our point, I mean you spoke about the education system. I wanted to ask you, what do you think about our Indian education system, current Indian education system? Honestly मुझे तो गधे प्रोडक्शन वाली फैक्ट्री जो है, क्लीशे आंसर वही है। वेरी ट्रू। क्योंकि मैं अभी जब यहाँ पे आया हूँ और मेरे क्लाइंट्स के जो बातें करते हैं या फिर मेरा जो इंटरेक्शन होता है, वहाँ से ऐसे मुझे पता चला कि मेरा बचपन से ऐसा आई वॉज ब्रेड टू लाइक ये बाबा ये इतना पढ़, नौकरी कर, शादी कर, ये घर ले, बाय 30-35 यू शुड हैव अ हाउस, जो तू सैलरी से कमा के लोन पे जो जिंदगी में भरता रहेगा उसका। ऐसा लेना है, आउट ऑफ द बॉक्स कोई है नहीं। सो माई स्कूल वॉज नॉट दैट फैंसी ऑफ अ स्कूल, इट वॉज क्वाइट ओके, इट वॉज अ गुड स्कूल। करेक्ट। आई गॉट माई फ्रेंड्स आउट ऑफ इट, आई गॉट माई स्पोर्ट। इफ यू आस्क मी, आई तो थिंक कि ज्यादा फैंसी होना भी नहीं चाहिए। रियलिटी चेक नहीं रहता लाइफ में। एक्चुअली देयर आर मेनी स्कूल्स व्हिच आर हैविंग सीसीडी एज अ कैंटीन राइट नाउ इन देयर स्कूल। वाओ, जो फैंसी स्कूल्स का बात किया सेम, दिस इज न्यू फॉर मी। सीसीडी अंदर है, बच्चे 4th स्टैंडर्ड के बच्चे लाटे और एक्सप्रेसो पी रहे हैं, उनको फिल्टर कॉफी पता नहीं है। एनी हाउ प्लीज कंटिन्यू। सो तो वो था कि स्कूल में, सॉरी, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन। हाँ, तो ऐसा पता चला कि बिजनेस वगैरह कुछ है ही नहीं, पता ही नहीं प्रोफेशन फ्रीलांसिंग बिजनेस नहीं। तुझे नौकरी करना है 9 से लेके शाम 6 तक बस। अभी टाइमिंग्स चेंज हो गए थोड़े, अभी 1 से 10 भी करते हैं, रात को 6 से 3, पर तेरे को 9 घंटा काम करना है। फैक्ट्री चालू है या फैक्ट्री अभी 24 आवर फैक्ट्री हो गई, पहले सिर्फ जनरल शिफ्ट था। अभी फैक्ट्री चालू है। सो मेरा पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हुआ जैसे जैसे मैं ये फील्ड में आया, कि आई गॉट टू नो वेरी न्यू थिंग्स विच आई वॉज लाइक टोल्ड कि अरे बाबा ये अपने लिए बने ही नहीं है, विच इज़ नॉट द केस। इट्स नॉट लाइक कि आई कैन नॉट डू दिस, यू जस्ट हैव टू पुट इन सम एफर्ट, सम टाइम, यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन। इट्स नॉट लाइक कि ऐसा मेन स्ट्रीम क्या बोलते हैं उसे, लैडर सेट है कि बाबा हाँ चलते जाओ, वैसे नहीं है। यू हैव टू मेक योर ओन लैडर इन दैट फील्ड, which is way more interesting. Right now I'm working slightly more than my 9 to 5 wale counterpart, so called 9 to 5. But you are happy? I'm way more happy. And plus you have the autonomy. Yeah, I have my freedom. I enjoy way more than what they might be.
Correct. कोई कोई किसी को पतंग आता होगा तो नहीं मालूम, पर नहीं ऑब्वियसली मुझे आता है एंड आई एम हैप्पी विद वेकिंग अप एट 5 एवरी डे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, स्लीपिंग एट 11, नो प्रॉब्लम, आई एम हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग करेक्ट एंड आई एम स्टिल अर्निंग handsomely well at least, then yeah. no I am saying handsomely well than Yeah. them. Let's say in par with them. Yeah, Let's not make them jealous. Got it. In par with them. But कोई लोग होते हैं जो बहुत मस्ती रहती है उनके लिए आई एम अर्निंग वे बेटर देन यू आर फॉर श्योर. Definitely. And Purush bhai, did you ever have a plan B in your mind कि ये अगर नहीं हुआ इसमें मैं कूद तो रहा हूँ बट अगर ये नहीं हुआ तो कुछ और प्लान था दिमाग में कभी? प्लान बी मेरा जब मुझे सब बोल रहे थे सिविल सर्विस में जा तब था, लाइक बीकॉम कर लो एमकॉम कर लो, कोई ना कोई तो जॉब मिल ही जाएगी. व्हेन आई वांटेड टू डू दिस देयर वाज नो प्लान बी. आई वाज लाइक कि यही करना है और ये करना ही है. और आई न्यू इट. आई डोंट नो, एट द बैक ऑफ माई माइंड आई वाज लाइक कि कुछ नहीं तो ये तो मैं कर ही सकता हूँ कैसे भी. आई माइट नॉट अर्न टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ रुपीज़, बट इतना तो कर सकता हूँ मैं पूरी ज़िंदगी मेरा और 2-3 लोगों का पेट भर सकता हूँ मेरी फैमिली में फॉर श्योर. Great, that's really great. And I also wanted to ask you that nowadays whenever people go like for admissions or they are just running behind jobs, even parents, even kids, तो उनका ग्रेजुएशन के बाद या फिर डिप्लोमा के बाद मेन फोकस यही होता है कि हाउ विल आई गेट अ गुड जॉब. उसके बारे में व्हाट डू यू थिंक? आई मीन ये पेरेंट्स की भी मेंटालिटी है और बच्चों की भी, दोनों में ये सेम बेसिक चीज़ घुस गई है कि प्लेसमेंट. एग्जैक्टली, लाइक आई सेड, अपना सराउंडिंग अगर 10 में से 6 लोग ऐसे तो वैसे होगी. आवर पेरेंट्स आर इन दैट ग्रुप. लाइक अनफॉर्चुनेटली मेरे पेरेंट्स भी वही उसमें थे, नॉट अनफॉर्चुनेटली बट है वो दैट्स द रियलिटी. दे वर ब्रॉट अप इनटू दैट थिंग. लाइक मेरे दादाजी आर्मी में थे, सो थोड़ा सा इधर उधर था, थोड़ा सा फ्लूइडिटी थी, पर इतनी नहीं. पर आर्मी इज ऑल्सो अ जॉब. करेक्ट. सो इट्स लाइक कि बाबा आर्मी नहीं पर गवर्नमेंट जॉब ले, थोड़ा सा चेंज हुआ थोड़ा. हाँ. सो दैट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन. वो मेरे में हुआ तो वो मैंने चेंज किया, वो अलग बात है, पर चेंज किया इसलिए आज यहाँ पे exactly. खुशी से बैठ के वी आर चैटिंग अबाउट इट. अदरवाइज अभी तो शेड्यूल करना पड़ता था मीटिंग. बेटर रहता. वेरी ट्रू. एंड एनीवेज आई मीन coming back to the last question which I wanted to ask you is that how will you define strength and what makes you the happy most? Strength is, for me, strength is almost every parameter in my life, because strength gives me confidence. Like this is the field where I know nobody can dominate me or nobody can challenge me. Like if someone defeats me, I'm still happy. Like I went in all out and someone is way better than me, I'm fine with it. But it's not like कि somebody is forcing me to do something and कुछ नहीं हो रहा है मेरे से. It's like कि मेरा all out effort जा रहा है and I have failed. वो ठीक है. Also strength is like I told you, like I'm an introverted guy, so this was the field where I chose कि not to be the introverted, like let my work do the speaking or let my performance do the talking and all. Correct. So जो कुछ भी आज मेरा चेंज हुआ है, आई कैन एक्चुअली से कि जैसे जैसे मेरा जो परफॉर्मेंस बढ़ा ना, मतलब बिफोर एंटरिंग इनटू दिस फील्ड, जो कॉन्फिडेंस या जो थॉट प्रोसेस या जो कॉन्फिडेंस लाइफ में अलग डिसीजंस लेने का था, दैट आई थिंक गॉट रेडिएटेड बिकॉज ऑफ मी बीइंग स्ट्रॉन्गर समवेयर एल्स. कि मुझे में कॉन्फिडेंस आ गया कि अरे बाबा मैं अगर ये कर सकता हूँ थोड़े टाइम एफर्ट्स डेडिकेट करके, तो आई कैन डू समथिंग अदर एज सम अदर थिंग एज वेल. So very true. That is strength for me, like strength which radiates everywhere, not just physical capability, your mental strength, your focus, your dedication, that is also strength. So yeah, for me strength is almost every part of my life. Very true. And what makes you the most happy? Happy is like proving all my critics wrong, that अरे ये क्या फील्ड है, अरे ये कुछ करने वाला है. So like I said कि नॉट बीइंग अ ब्राइट किड. क्रिटिक से मोटिवेशन. हाँ. और फिर मोटिवेशन से या हाँ, मेरा थोड़ा सा ये एटीट्यूड बोल सकते हैं कि अगर किसी ने बोला ना कि अरे बाबा तू ये नहीं कर सकता है, या फिर दे आर क्रिटिसाइजिंग मी फॉर समथिंग सम अदर थिंग, अब तो मैं यही करने वाला. एक्शंस से बताएंगे बाद में. अब तो मैं कुछ बोलता नहीं,
कि हाँ बाबा करके दिखाऊंगा तुझे, फिर भी देखते. करेक्ट. I won't even say anything after I have completed it, but जिसको पता है उसको पता है. हाँ कि I'll make sure कि he'll understand कि थोड़ा सा मैं बोल नहीं रहा हूँ पर ये मैंने तेरे मारने के लिए किया. करेक्ट. इज द थिंग. वो कॉम्पिटिटिव नेचर है कि मेरे गेम की वजह से डेवलप हुआ. बट इट हेल्प्स यू. दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम इट कि अगर दिमाग में डाल लो वो कीड़ा, तो अगर प्रूव करना चाहो तो यू कैन प्रूव द वर्ल्ड, एंटायर वर्ल्ड रॉन्ग. एंड स्टैनली द मार्वल क्रिएटर आल्सो सेड कि एक भी छोटी आइडिया है एंड यू बिलीव इट इज रियली रियली गुड, तो डोंट केयर अबाउट व्हाट द वर्ल्ड इज टेलिंग यू और व्हाट बुलशिट दे आर टेलिंग यू अबाउट दैट. उनको नहीं सी विजन तुम्हारा है ना. हाँ, मैं तो यही मानता हूँ कि बाबा लोग बोलते हैं ऐसा एटीट्यूड नहीं चाहिए, यू शुड बी हम्बल वगैरह. नहीं भाई, अगर मेरे को कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, मेरी कोई तो भी इज्जत कम कर रहा है, निकाल रहा है, मैं तो तुम्हें दिखा के रहूँगा. Correct. And in your case, you are just not speaking it out, but your actions are speaking it out for I don't yourself. say it, but I let my actions do the thing. पता चलेगा थोड़े टाइम बाद कि हाँ ये होना चाहिए सब लोगों में, because this is a anger driving or force. yeah. ड्राइविंग फोर्स ही नहीं है. अरे बाबा हाँ नहीं, जो चलते रहे, संत आदमी तो है नहीं. मुझे थोड़ी समाधि लेनी है. Correct. तो कोई तो ड्राइविंग फोर्स चाहिए. So in a way we should thank your critics because you have leveled up because of them and you are here, and it was great talking to you and knowing your journey. So thank you for giving your time and telling us about everything.